today we are going to start second term of class 9th mathematics. We will start from chapter Heron's formula. This one is chapter number 12 in some of the books and it may be chapter number 11 in some other books. Now chapter is Heron's formula. Firstly, let us discuss what is Heron's formula. We use this formula for finding area of a triangle. The formula was given by mathematician Heron. That's why in respect of the mathematician, the formula is known as Heron's formula. Heron's formula is always used to find area of a triangle. We have different formula to find area of triangle and we make use of this formula when all the three sides of a triangle are given. जब triangle की तीनों sides की length हमारे पास होंगी, then we use Heron's formula to find area of triangle. Heron's formula area of triangle by Heron's formula calculated by S minus A, S minus B, S minus C. This one is Heron's formula. अगर हम यहाँ लिखते name of the chapter as well as formula S minus A, S minus B, S minus C, then square root of the whole term, पूरी की पूरी term का square root भी यहाँ पे use करते हैं. Now this one is Heron's formula. Heron's formula, area of triangle is equal to this one. This one is, यहाँ पे मैं लिख दूँगा area of triangle. तो अगर मैं ब्रैकेट ना यूज करूं, we can make use of this sign. Area of triangle by Heron's formula can be calculated by this way. Now what is S? What is A, B, C? Here A, B, C are the sides of triangle. A, B, C. These are sides of triangle. And S is equal to A plus B plus C divided by 2. We know A, B, C. These are the lengths of sides. अगर A, B, C lengths of sides हैं, then A plus B plus C. A plus B plus C को हम perimeter बोलेंगे. Sum of all the three sides of triangle. And if A plus B plus C is perimeter, then A plus B plus C upon 2. This one is called semi perimeter. Half of the perimeter. Perimeter को half कर दिया. Semi perimeter. This one is S. Whenever we make use of formula, Heron's formula for finding area of triangle, firstly we need to find S, that is semi perimeter, and S is equal to A plus B plus C upon 2. Now we will start from question number 1. यहाँ लिखेंगे exercise 12.1. Now what is question number 1? A traffic signal board. हम देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड्स बड़ी जगह रोड के साइड पे इंस्टॉल किए होते हैं. A traffic signal board indicating school ahead. सिग्नल बोर्ड है, उस पे एक मैसेज लिखा हुआ है school ahead. And traffic signal board is in the form of an equilateral triangle with side A. हर एक साइड को A बोल दिया. हम कहते हैं A, B, C. But here traffic signal board is in the form of an equilateral triangle. जब equilateral triangle है तो सारी की सारी sides equal होंगी. Find the area of the signal board using Heron's formula. Its perimeter. Perimeter is given. Perimeter is equal to 180 centimeters. देखिए अब क्या यूज करेंगे यहाँ पे. Here perimeter. Perimeter is equal to 180 centimeters. This one is given. Now perimeter means sum of three sides. We can say A plus B plus C is equal to 180. But
Since the signal board is in the form of an equilateral triangle, हर एक साइड A है, so A plus A plus A, 180. Now this one is 3A, 180. A will be 180 upon 3. A is equal to 60. हमने A फाइंड किया. अगर A 60 है, B और C भी सेम होंगे यहाँ पे, बिकॉज A B C इक्विलेटरल ट्राइंगल तो सभी सेम होंगे. Therefore A is equal to B is equal to C is equal to 60. Since triangle is equilateral, चलिए सेंटीमीटर्स भी यहाँ पे यूज कर लिया. Now we need S. जब भी हमने फॉर्मूला यूज करना है हमारे पास S होना चाहिए, एंड S is equal to A plus B plus C upon 2. लिखेंगे. Now S is equal to A plus B plus C upon 2. A plus B plus C. A plus B plus C is equal to 180 upon 2. 180 upon 2 is equal to 90. हमने S फाइंड किया, हमने A फाइंड किया. We can say A, B और C तीनों फाइंड किया हमने. Now we will use formula for finding area of triangle here. What will be the area of the signal board? Area of signal board. Signal board is in the form of an equilateral triangle. लिखेंगे area of signal board is equal to, formula use करेंगे S minus A, S minus B, S minus C. This one. What is S? S is 90. 90 minus A. हम यहाँ पे S minus A, S minus A, S minus A तीन बार लिख सकते हैं. यहाँ पे A B C अगर नहीं लिखेंगे तो. Now S minus A, 90 minus A is 60. Then S minus B, B is again 60. S minus C, C is 60. Then square root. It will be 90. 90 minus 60 is 30. 90 minus 60 again 30. 90 minus 60 30. Now we have two different ways. कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे, इन सारी की सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वो फाइंड कर लेंगे स्क्वायर रूट बाय मेकिंग यूज ऑफ कैलकुलेटर. इफ यू डोंट वांट टू मेक यूज ऑफ कैलकुलेटर, वैसे करना चाहिए भी नहीं कैलकुलेटर का यूज यहाँ पे, बिकॉज वी कैन वेरी इजीली फाइंड द रिजल्ट. देखिए कैसा करना है हमें. 90 can be written as 3 into 30. 3 into 30 is 90. 90 को सेपरेट कर लिया. Now 30, 30, 30. 3 times 1, 2 and 3. Now square root अगर फाइंड करना है तो हम पेयरिंग करेंगे. We have 2 times 30 here, 1 pair. Then 2 times 30, again 1 pair. जब स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट से बाहर निकालते टाइम ये दो 30 में से एक ही 30 लिखना होता है, जो स्क्वायर रूट का प्रोसीजर है. अगेन 2 बार 30 है, इनमें से भी एक ही लिखेंगे. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट. जब इन दो में से एक लिख दिया, नाउ हम ये कह सकते हैं कि हमने 30 into 30 का स्क्वायर रूट लिया, दैट इज 30. अगेन 30 into 30 स्क्वायर रूट लिया, दैट इज 30. लोग ये याद नहीं रख सकते, लेकिन वेरी सिंपली वो बड़े सिंपली ये याद रखेंगे, जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, पेयर था मतलब 2 बार 30 था, एक ही लिखना है. फिर से 2 बार 30 था, एक ही लिखना है. अब यहाँ क्या रह रहा है 3, ये पेयर में नहीं है, दैट्स वाई ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा. 30 into 30 900, देन रूट 3. अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के साथ आंसर कंपेयर करेंगे तो सेम आंसर टेक्स्ट बुक में आपको गिवन होगा. 900 रूट 3. सिंस दिस वन इज एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, सेंटीमीटर्स में था, हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला. अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 ये किया हमने, फॉर्मूला मैं इरेज कर रहा हूं यहां से. इसको भी इरेज करेंगे. Question number 2.
triangular side walls of a flyover has been, देखिए ऐसा है, has been used for advertisement. एक flyover है, उस flyover की एक side wall है which is in the shape of a triangle. उसको एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज किया. आपको पता है एडवर्टाइजमेंट के लिए जब भी यूज करते हैं तो उसका रेंट पे करना पड़ता है, जिसकी भी वो वॉल्स होंगी, जो भी उसका ओनर होगा. द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, तो जब ट्राइंगुलर है हम ऐसा कर सकते हैं, सिंस ट्राइंगुलर की 3 साइड्स, उनको ए बी सी लिखेंगे. लेंथ उनकी 122 मीटर्स. मैं लिखूंगा ए इक्वल टू 122 मीटर्स. देन बी second left side 22 meters, length of third side, that will be C, 120 meters. Okay, the advertisement yield an earning of rupees 5000 per meter square. देखिए कितनी अर्निंग है, रुपीज 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. मतलब ये हुआ कि अगर एक वॉल को 1 ईयर के लिए हम रेंट पे देते हैं तो उसका पर मीटर स्क्वायर का जो रेंट बनेगा दैट इज रुपीज 5000. आफ्टर दैट अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months. अब कंपनी ने क्या किया, इसी वॉल को 3 months के लिए हायर किया. तो कंपनी को कितना रेंट देना पड़ा वो हम कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे हम 3 months का रेंट कैलकुलेट करेंगे, बट ये जो रेंट है ये पर मीटर स्क्वायर के लिए. सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इस पूरे जो ट्राइंगुलर वॉल है उसका एरिया फाइंड करेंगे, देखेंगे कितने मीटर स्क्वायर बनता है, उसका रेंट कैलकुलेट करेंगे, 3 months तक उसको ले जाएंगे. सो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है ये. जब एरिया फाइंड करना है, again we need ABC and we are having ABC. Now S is equal to A plus B plus C upon 2. A is 122, B 22, C is 120. एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे इन वैल्यूज को. One 22 and 120. ओके, ये मीटर्स में है. नाउ 264 upon 2, it will be 132 meters. We calculated S. Now area find करेंगे. Area of wall, since wall is triangular, so formula क्या होगा, S minus A, S minus B, S minus C. This one is formula. Now S is equal to 132, then 132 minus A is 122, 132 minus B is 22, 132 minus C is 120. S minus A, 132 minus 122, ये होगा 10. इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 132 minus 22, 110. इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे we will get 12. अगेन हम ट्राई करेंगे विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व करने की. देखिए 10 है, 110 को हम लिखेंगे 11 multiply 10. 11 multiply 10 करेंगे तो हमारे पास 10 का पेयर हो जाएगा. नाउ दिस वन इज 12, दिस वन इज 132. 132 को अगर मैं लिखता हूँ 12 multiply 11, आप करके देख सकते हैं. 12 multiply 11, दिस वन इज 132. देन 110 को लिखूंगा मैं 10 multiply 11, 12 यही रहेगा. सेम टर्म्स को हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे. फर्स्टली वी हैव 2 times 10, सो 10 into 10.
Then 2 times 11, 11 into 11. After that we have 2 times 12, so 12 multiply 12. Now पेयरिंग करेंगे यहाँ पे. We have 2 times 10, 2 times 11, 2 times 12. स्क्वायर रूट के बाहर निकालने के लिए, स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए 2 times 10 था, स्क्वायर रूट के बाहर 1 लिखेंगे. 2 times 11 अगेन 2 times 12, इसको भी एक बार लिखेंगे. नाउ स्क्वायर रूट कैंसिल. 1320, ये हमारे पास आ रहा है मीटर स्क्वायर्स में एरिया ऑफ वॉल. वी कैलकुलेटेड एरिया ऑफ वॉल. अब आप देखेंगे रेंट कितना है, ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. देखिए रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए फॉर 1 ईयर, 1 year. Now 1 year means 12 months. ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे. According to question, this one is ₹5000. कितना रेंट है? 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000, 2 मीटर स्क्वायर के लिए 2 multiply 5000, 3 मीटर्स के लिए 3 multiply 5000, 4 मीटर्स के लिए होगा 4 multiply 5000. लाइकवाइज इतने मीटर स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 5000 को. तो लिखेंगे रेंट फॉर कितना है 1320 मीटर स्क्वायर फॉर. अब मैं 1 ईयर नहीं लिखूंगा, मैं 12 मंथ्स ही लिख के चलूंगा. 12 मंथ्स. दिस वन इज सेम थिंग. 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना था, सो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए 1320 मल्टीप्लाई 5000, इतने रुपीज रेंट होगा. नाउ रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ्स के लिए वी हैव रेंट. तो 1 मंथ के लिए कितना रेंट होगा, मैं सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा. अगर हमारे पास 5 पेन्स की कॉस्ट है 20 रुपीज, सो 1 पेन की कितनी होगी, 5 की 20 रुपीज है, 1 की होगी 20/5. मतलब ज्यादा से कम पे आना है तो डिवाइड. 12 मंथ्स के लिए रेंट है, 1 मंथ पे आना है, वी विल सिंपली डिवाइड कर देंगे बाय 12. 12 मंथ का रेंट इतना था, तो 1 मंथ का कितना होगा, डिवाइडेड बाय 12. आफ्टर दैट रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर, हमें कितने मंथ्स का रेंट निकालना है, 3 मंथ्स का. थोड़ा फिर से रिपीट करेंगे. 1 पेन की कॉस्ट है 4 रुपीज, सो 3 पेन्स की कितनी होगी, 4 multiply 3. मतलब 1 मंथ का रेंट अगर है 3 मंथ्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा. 1320 5000 डिवाइडेड बाय 12, इतना था. 3 मंथ्स के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे. वेरी सिंपल. नाउ 3 1 3 एंड 3 4 12. याद रखेंगे आप, बड़ी ज़्यादा कटिंग भी नहीं करेंगे यहाँ पे. 1320 मल्टीप्लाई 5000 डिवाइडेड बाय 4. अब क्या करेंगे, 4 1 4, यहाँ कैंसिलेशन करने की कोशिश करेंगे. 330. Now 330 multiply 5000. 330 multiply 5000. We are calculating the rent paid by the company for the wall. So 1 2 3 4 zeros है, 1 2 3 4. Now 5 के साथ मल्टीप्लाई. ये जो है इतना रेंट उस कंपनी को पे करना पड़ेगा. रेंट paid by the company. This one is question number 2, exercise 12.1. Chapter is Heron's formula from second term of the syllabus. Thank you.